अस्सलाम नाजरीन, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उनके बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि काम की वजह से भी काम नए आते हैं, यहाँ पर कंपनीज नहीं होती, काम नहीं मिलता। तो उस सिलसिले में ये हमारे साथ आप देख रहे होंगे बिलाल भाई को। ये तो जाने माने जो है ना शख्सियत है, काफ़ी सारी वीडियो में आपने देखा इनको मेरे साथ। तो उनके साथ आज जो है ये प्रेसिडेंट हैं हमारे मिस्टर क्रिस्टी साहब। तो इनको भी मैंने आज इनसे टाइम लिया बड़ी मुश्किल से। इनसे भी बात करेंगे कि कुछ जो इशू हैं यहाँ पर वर्कर्स को, जो भी फार्मर्स यहाँ पर आते हैं, उनके लिए काफ़ी मसाइल हैं यहाँ पे। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो आपको बताते हैं इस वीडियो का मकसद क्या बनाने का। बस इस वीडियो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको सही समझ आए। और इनसे भी सवाल जवाब करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, इस कंपनी के मालिक भी हैं, ये बिलाल साहब की बिलाल साहब जहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी कंपनी के ओनर भी हैं, काफ़ी सारी कंपनियाँ इनकी। तो इनसे पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना बिलाल भाई से भी बात करेंगे। और जो समझ नहीं आएगी वो इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी ज़ुबान में, ताकि सब भाइयों को, बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, नेपाल के हैं और पाकिस्तान के हैं, जहाँ के भी लोग हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। जो आपके मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो है हल हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर क्रिस्टी से। हेलो सर, हाउ आर यू सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम वेरी thankful of you. You have given us some time, and I'm very thankful because you are so busy person. What is the name of your organization? Can you explain here to the people, sir? Yeah, the name of the association, it's the Association for Gay Employers by Romania, for short AASR. The purpose of this association is to help and the protect of the foreign employers who arrive in Romania for working. As we have the experience previous years, they can appear a lot of issue, and to be sincerely, everyone come here in blind because they don't know what rights and what obligation they have when they arrive in Romania. As in other countries, Romania is the same. If you come here, you should respect the rules and regulations. Also, you have some rights. If you don't know your rights and what your obligation you have, you can have issue with the authorities. And sir, if okay, first of all, you told us that your organization AASR, you can आप जो है ना ये इंटरनेट पे भी आप इसको जो है ना सर्च कर सकते हैं। Sir, if someone has a problem, so you can help them, right? Yes. By your organization. Yeah. What is the benefits of this organization if someone get your membership of this organization? After they becoming the members of the association will protect them and they will represent everywhere in the relation with the authorities. They will solve all the issue what can happen in the Romanian territory. Yes, also, we have a program to beginning to learn the Romanian, to can including in our community, to understand also our community and how Romanian thinks, to don't have any issue with the. If they have any issue here in this in Romania. Yes. Yeah. And sir, how they can get the membership of your organization? The membership in this moment can happen in our office. Also, we have a website where they can put their details. Online, if they put the details online, they can get it. Can make them appointments to come to our office to explain what benefits they have, how can to see also the situation, and how can we solve the situation. And after that, they will pay a yearly fee. There is a fee also. It's a fee also. And for this fee, they will be represented by our lawyer house and all the team who make part from this association. It means you have a lawyer of this organization. Yeah, we working with an important lawyer house
who help us in any kind of issue, legal issue, what can happen in the Romanian territory. Okay. Also, on the future, we want to extend a little bit the membership. After they getting the working permit, if they are still in original country, they can apply for the membership, and when they arrive here in Romania, they will be covered and represented by us if they have any issue here with employer, with laws, with everything to be covered from the first step in Romania. Okay. If they have any issue, I will explain in my language to them what you said. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वर्क परमिट लिया है पाकिस्तान के अंदर तो आपको खदशा है कि आपकी कंपनी नहीं है या आगे जो है ना जॉब आपको मिलने का मसला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पहले से पता होता है कि यार कंपनी जॉब नहीं देगी या कोई मसला हो सकता है, तो वहाँ पर ही वो अपनी मेंबरशिप जो है ना वो ले सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है इस बात का, तो मैं भी कहूँ हूँ इंशाल्लाह गारंटी भी है मेरी, कोई फ्रॉड वाला चक्कर नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबरशिप आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके साथ कोई मसला परेशानी होती है तो वो ये है कि ये इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इनका जो ऑफिस है वो भी मैं आपको बताऊं। अच्छा मेरे दोस्तों, अभी इसका मतलब नहीं है कि मैं अगर आपका बिलाल भाई का नंबर देता हूँ यहाँ पर तो आप जो है ना इनको कॉल करना शुरू कर दें। मैंने बताया वीडियो में कि अभी बता रहा हूँ कि जिसके पास वीज़ा है, जिसके कोई इश्यू है, उसको पता है कि यार मेरी कंपनी नहीं है वहाँ पर, तो वो यहाँ पर आके या वहाँ पर रह कर भी जो है ना मेंबरशिप ले सकता है। यहाँ आने के बाद मेंबरशिप ले सकता है। ये पूरी आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी कोई इशू होता है यहाँ पे रोमानिया के अंदर, किसी किस्म का भी कोई आपको इशू होता है, लीगल कोई भी इशू है आपको, कोई काम का है या कोई और है, कोई मसला बन गया है, कोई केस आप पे बन गया है, तो वो उस सूरत में ये है कि ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो है ना नंबर देख के कॉल करें जी हमें वर्क परमिट चाहिए। ये कोई रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है, ये सिर्फ ये क्रिस्टी साहब जो है ये इनका बड़ापन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है इनकी और फीस भी है इनकी, लेकिन ये फीस कुछ भी नहीं है। जो बात समझते हैं ना, ये फीस बिल्कुल आटे के नमक के बराबर है। तो भाई जो है ना यहाँ पर हमारे पाकिस्तानियों में या हमारे जितने भी फॉरेनर्स हैं उनका मसला है, ये बेचारे वहाँ पे रह रहे, गुर्बत है, सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो वो उनका यही प्रॉब्लम है बेचारे, वो वहाँ से जान छुड़ाना चाहते हैं। और कोई भी थोड़ा सा आसरा कि कोई देता है उनको, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि यार हमें वर्क परमिट चाहिए, वीज़ा चाहिए। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। जिस भाई के पास वीज़ा है और वो डरता है कि यार पता नहीं मेरी कंपनी मेरे साथ क्या करेगी, तो आप इनकी मेंबरशिप लेकर उसके बाद जो है ना आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। आपके कागजात का कोई इशू नहीं बनेगा, आप लीगल यहाँ पर रहेंगे, कोई इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। तो बिलाल भाई अगर मजीद इसमें कोई चीज़ आप बताना चाहें तो आप बताएं इसमें। जी, मैं बिल्कुल ये ज़रूर आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तो किसी के पास बंदे के पास अगर कोई वीज़ा है यहाँ पर मौजूद है और उसको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, सारे लोग मतलब यहाँ पे जानते हैं और अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं इसी के लिए, मसले के लिए, किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं राय साहब नंबर बिल्कुल सामने होगा तो आप जो है वो कांटेक्ट कर लें। लेकिन जिसकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मुझे फ़ोन करे, मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करें, आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, बेटर है कि आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपका मैसेज सुन लूंगा। बंदा रात को फारिग होता है तो बंदा जो है ना वो बंदा मैसेज का जवाब दे देता है या कॉल कर लेता है। जी बिल्कुल, आप मुझे जो है ना मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर दूंगा। उस पर यह है कि आपको एडवाइस के लिए हमने आपको बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको अगर आप फर्स्ट मेंबर हमारे बनेंगे तो हम आपको एडवाइस देंगे। आप हमसे फर्स्ट एडवाइस ले सकते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑफिस में आए, डिटेल आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे फिर हमारे ऑफिस में आए, हम आपको मेंबरशिप देंगे और फिर हम आपको पूरे साल प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक अगर अभी ये फरवरी जा रहा है तो अगर आप अभी मेंबरशिप, और कुछ भाइयों के साथ यहाँ मसाइल हुए हैं लेकिन उन्होंने पूरी उनकी मदद की है, उनको जो है ना कागजात तलवाए हैं, लीगल किया यहाँ पे, इस तरह के मसाइल लोगों को आए हैं तो इन्होंने बड़ी हेल्प की है। चलें ठीक है, इनकी फीस समझता हूँ मैं, कोई फ्री नहीं कर रहे, लेकिन ये फीस भी कोई मैंने नहीं रखती है साल के लिए। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो है ना जैसे बॉस ने मेरे जो है ना वो इस चीज को बताया है कि हमारे पास एक लॉयर हाउस है। उस लॉयर हाउस का मतलब ये होता है कि हमारे पास हर किस्म का मतलब लीगल एडवाइजर हमारे पास मौजूद है, जो आपको हर किस्म के इशू का, लाइक किसी का कोई मतलब इमिग्रेशन से रिलेटेड केस होता है, किसी का और किसी टाइप का केस होता है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ के जो है ना डिफरेंट टाइप के हमारे पास लॉयर्स हैं। जो हमारे पास एक लॉयर हाउस है, उस पर हम जो है ना हर किसी का अपना जो काम होता है वो उस पर वो काम करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पूरी एक टीम है और हम लोग इसको लेके चल रहे हैं।
तो बाकी अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, मोस्टली यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप जो है ना वो कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जल्द से जल्द जो है वो उसका हल निकाल के दें। और अगर किसी के पास वीज़ा होता है तो वो टाइम को ज़ाया करने से बेटर है जब वो आते हैं तो फ़ौरन ही अगर कोई प्रॉब्लम बनती है, अगर पाकिस्तान से कोई देख रहे हैं आते वक्त कोई अगर प्रॉब्लम बनती है तो बंदा फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें कि टाइम आपने स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कीमती अगर है। आपको वीजा मिलता है तो जल्दी जो है ना जल्दी कोशिश करें आने की, और उसके बाद फौरन आके हमसे फिर कांटेक्ट करें, क्योंकि आप एक की वीजे की आपकी एक लिमिट होती है। फिर उसके बाद हम लोग भी, क्योंकि यहाँ के कुछ कानून है, उसके बाद फिर हम भी कुछ नहीं आपके लिए कर सकते। सिंपल इज दैट। ठीक है। And I have some one question, sir, with you. And if someone is here and he's not getting salary on time, or company is not giving him, or maybe he's working, the general contract is 8 hours, but some employer are taking more than 8 hours, 10 hours, 12 hours. They are taking the duty from the peoples. So if someone want to change his company without a resignation letter, you can help him in this case, or it is impossible, or this is not legal way. We'll try to solve with our lawyer house to go to discuss with the employer and see what's happened, to check the case, and I think till the end we'll find a solution to be. Yeah, mostly sir, people are here very nice people, Romanians, but some employer are not good and they are not giving salary on the time, even what they have written in the contract 8 hours, but they are taking the duty more than 8 hours. So some people are facing like these problems. So if someone want to change jobs, so you can help him. Yes, we'll try to find the best company who need about his. But who has a membership of the Yes, organization? Yeah. but first of all, they should become members. We cannot involve Yeah, without the membership. या इट्स ओके। इट इज आई थिंक, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे उनसे एम्प्लॉयर ज़्यादा टाइम ड्यूटी करवाते हैं, 8 घंटों से ज़्यादा, या उनको कोई मसला है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, यार इनका फीस इतनी नहीं है, 350 यूरो, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर आपका कोई भी नहीं है जानने वाला, तो ये सबसे बहुत बड़ा अहम जो है ना पॉइंट है कि आपको एक सरबराही मिल जाएगी एक इनकी शक्ल में, तो आप जो है अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मतलब है, इन्होंने इनका एक इकदाम है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साल में एक ही, अल्लाह ना करे आपको कोई इशू आए, लेकिन कोई इशू आता है तो ज़रूरी नहीं है कोई एक ही इशू आता है साल के अंदर, तो कोई भी इशू बन सकता है इंसान का यहाँ पे। तो मैं अभी एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, उसमें ये है कि अगर किसी का कोई भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल का इशू है, किसी किस्म का भी, अगर वो हमारे मेंबर्स होते हैं, हम उनको हर तरीके से लीगल वे और हर चीज़ उनको बताएंगे कि कैसे वो अपना इलाज करवा सकते हैं। या सबसे बड़ी ये बात होती है कि इंसान यहाँ पे आता है और बहुत सारी मसाइल से उसको गुजरना पड़ता है। अगर किसी को अल्लाह न करे कोई मेडिकल इशू हो तो वो भी हम आपको लीगल एडवाइस देंगे कि आप किस तरह, कहाँ से आप करवा सकते हैं, कैसे होगा। तो बस ये एक मेन चीज़ थी जो मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा आप लोगों को जो है ना ये चीज़ कभी बता दें। तो बाकी साहब को इंशाल्लाह हम बुलाएंगे फिर दोबारा से, अगर इन्होंने हमें टाइम दिया तो मैं इंशाल्लाह हम आपके सामने वो केसेस और वो चीज़ें रखेंगे जो लीगल चीज़ें हैं, वो हम आपके सामने लेके आएंगे कि हमने इसके पेपर्स की ये प्रॉब्लम थी, इसके ये पेपर्स की प्रॉब्लम थी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब ऐसा भी सब वीडियो बनाएंगे हम उन बंदों को सामने रखेंगे जो आपको बताएंगे कि हमारे पेपर्स में ये प्रॉब्लम थी और इन लोगों ने हमारी सॉल्व करके दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होपफुली काफ़ी लोगों ने इनसे जो है ना वो फ़ायदा उठाया है, काफ़ी लोगों की इन्होंने हेल्प की है, मसले सॉल्व हुए हैं। तो मुझे पता चला तो बिलाल भाई के थ्रू, तो मैंने कहा अगर आप टाइम ले सकते हैं अपने बॉस क्रिस्टी से तो प्लीज़, तो इन्होंने टाइम लिया इनसे, तो इनका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो प्रदेश होता है उसमें कोई मसले मसाइल बन जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।